So now we will begin with this wonderful course which include both mentorship as well as foundation course. Now as we know that UPSC, if you have seen that it is very dynamic. It used to be something in 2012-13, it used to be something else in 2018, it used to be something else 23, and now in 24 it's going to again basics. So it means it is a dynamic exam where you need to be prepared for all kind of uncertainties. Okay, but now question arises how you can be ready for uncertainties, and the answer lies in if you prepare for uncertainties in advance, like anticipating that what uncertainty can be asked, and then how we can do this, that how we can minimize the risk of these uncertainties lies in completing the whole syllabus, covering the whole syllabus from the perspective of both prelims as well as mains. And apart from that, anticipate that what situation that can be and be ready for that. Like it can be an unconventional paper where all kind of facts can be asked which are not asked earlier, or it can be a conventional paper where only the bookish statement will be asked. So you need to be prepared for both. Similarly for mains, it can be for both static type of question. In the past 3 years in economics they are asking, especially in GS3, they are asking not just current affair. Now they are asking static questions also, that what all taxes have been subsumed in under GST, okay, and what is Hubble Webb telescope. So such kind of questions are also asked directly. So now we will be discussing in this wonderful session that how you can approach as you are the beginner. We will be talking from the perspective of you are a beginner and you want to start. Okay, for those who have given already prelims twice, thrice, or multiple times, or have given mains also but not qualified, for those foundation course is not generally meant for them, but yes, mentorship is also meant for them. Okay, so, I have given let me give you my brief introduction. I have given 4 attempts. I have qualified 3 prelims, 3 mains, and selected twice in 2020. I am an IPS through CSC 2022. Okay, so now we will be talking about how we can approach for this particular examination. And the first thing is, now it includes how many of the components. Now I will be telling you what are the components of this examination. First stage is prelims examination, which include 2 papers, GS1, GS2. GS2 is an aptitude based test, and GS1 constitute and GS1 में जो है हमारा वो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं. जनरल स्टडी के सब्जेक्ट इट मीन्स पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, सोसाइटी, दीज ऑल सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ अवर GS1 एग्जामिनेशन. एंड GS1 के लिए कट ऑफ लगता है डिपेंडिंग ऑन द हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट आर गेटिंग. बट फॉर CSAT ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, 33% and it is 66 marks out of 200. Okay, so this is about prelims. Similarly in mains there are examination. For mains every examination constituting 250 marks, one being GS1, 2, 3, 4, optional 1, 2 and essay. It constitute 750 marks plus 250 marks interview. So this is just a brief about the examination. और prelims के जो marks हैं वो add नहीं होते हैं in the final stage. This is just a qualifying in nature. लेकिन जो हमारा मेंस है जहां पर 1750 आउट ऑफ 2025 मार्क्स, 2025 मार्क्स, 50 मार्क्स लाइज इन द मेंस. सो मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट लाइज इन द मेंस. लेकिन प्रीलिम्स भी जब क्योंकि जो प्रीलिम्स को हम एलिमिनेशन स्टेज बोलते हैं, 7-8 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, उनमें से 14-15 हज़ार बच्चे मेंस के लिए बैठते हैं. तो इट मींस आउट ऑफ देम 95-96% जो है लोग बाहर प्रीलिम्स की स्टेज पर हो जाते हैं. तो इसलिए हमें प्रीलिम्स के लिए भी रेडी रहना है. नाउ जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अनसर्टेनिटीज को कैसे हटाए डायनेमिसिटी के अंदर, तो फर्स्ट टॉपिक वाज सिलेबस, कि हम सिलेबस को कैसे करें.
अब सिलेबस के लिए यूपीएससी स्पेसिफाई सिलेबस करती है चैप्टर, यू कैन से सब्जेक्ट वाइज, बट उसके अलावा हम लोगों ने एक डिटेल्ड सिलेबस बनाया है, मैं उसका पीडीएफ अवेलेबल है, दैट विल बी प्रोवाइडेड यू ऑन द प्लेटफॉर्म, वो आपको प्लेटफॉर्म पर एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसमें एक चेकलिस्ट दिया गया है, उस सिलेबस के अंदर एक चेकलिस्ट दिया गया है ऐसे, जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट टॉपिक हियर इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आप पढ़ रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस का आगमन, या फिर आप मिडिवल में पढ़ रहे हैं मुगल शासन, ठीक है। देन मुगल्स के अंदर सबसे पहले क्रोनोलॉजी के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट किंग्स की आपको सिलेबस में दिया जाएगा, और आपको जस्ट क्या करना है, जैसे ही आपका उसका एक बार करे और उसका एक बार रिवीजन करे, आपको टिक मार्क कर देना है, सेकंड रिवीजन में उसका टिक मार्क का कलर चेंज कर देना है, सो दैट आप सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। एक A to Z आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक इंटीग्रेटेड आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और यही इस फाउंडेशन कोर्स का बेसिस होगा। जो हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स डिजाइन किया है उसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो आपको ये टिक मार्क वाले हैं आपको क्लासेस में कराए जाएंगे, उसके अलावा कुछ जो टॉपिक्स बचते हैं उनके लिए ट्राई किया जाएगा कि आपको हैंड आउट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब सेकंड थिंग इज कि सर सब कुछ तो सेम है, आप भी वही बुक्स बोलेंगे पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी पढ़िए, आप भी वो बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत पढ़िए, लेकिन फिर भी सर ये तो हम सब पढ़ रहे हैं, 10 लाख लोग पढ़ रहे हैं, हाउ डिफरेंस इज बीइंग क्रिएटेड, सो दैट उसके लिए द अप्रोच फॉर रीडिंग दोज बुक्स मैटर। कि आप जैसे सपोज कीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे तो एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, एसएससी के लिए पढ़ेंगे तो अलग पर्सपेक्टिव होगा, और स्कूल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे तो अलग पर्सपेक्टिव होगा, और यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो अलग पर्सपेक्टिव होगा। तो वो पर्सपेक्टिव डेवलप कराने में हम आपकी हेल्प करेंगे कि यूपीएससी के लिए मोस्ट एप्ट तरीके से सबसे कम टाइम में आप कैसे पॉलिटी की किताब, ज्योग्राफी का बुक, इकोनॉमी का नोट्स और इकोनॉमी का बुक जो है वो आप कंप्लीटली कवर कर सकते हैं मिनिमम टाइम पॉसिबल में फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। अब बात आती है कि हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव पर कैसे पहुंचे। हमारे पास अवेलेबल है इस मार्केट में, यूपीएससी मार्केट में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स जो बताता है कि यूपीएससी का अप्रोच किस तरीके से इवॉल्व हुआ है इन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो देन इफ वी गो फॉर पीवाईक्यू, तो वन कंपोनेंट इज सिलेबस एंड द अदर कंपोनेंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा वो रिपीट होगा, लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज फाइंडिंग दैट अप्रोच जिससे आपको लगे कि आपने सोर्स पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी, और आप पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। आपने ज्योग्राफी की बुक पढ़ी, आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू ए राइट पाथ। अंडरस्टैंड? Now the first thing is completing the comprehensive syllabus, and we will be giving you checklist wala syllabus, detailed syllabus, micro topic wala syllabus will be provided to you, and apart from that PYQ analysis will also be provided। around 20 to 25 ईयर का मार्केट में भी अवेलेबल है, और उसका सब्जेक्ट वाइज बुक्स आता है जिसके अंदर PYQ का अच्छे से एनालिसिस किया गया है। तो आप इन दोनों चीजों को अपनी अप्रोच चेंज करने के लिए फाउंडेशन बनाएंगे। देन वी विल स्टार्ट रीडिंग द बुक्स कि वही पॉलिटी, वही लक्ष्मीकांत और वही सारी एनसीईआरटी 11th क्लास का बच्चा भी पढ़ता है ना, 12th क्लास का बच्चा भी पढ़ता है, लेकिन वो यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए तो नहीं पढ़ता है। तो इसका मतलब है उसका अप्रोच है कि स्कूल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया जाए, और लेकिन सेम बुक को जब आप पढ़ेंगे आपका फोकस होगा तो आपको यूपीएससी कैसे क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये सिलेबस है मेजर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडियन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इश्यूज, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दीज आर सम टॉपिक्स। ये ब्रॉड टॉपिक है, मैक्रो टॉपिक्स है, बट इन टॉपिक्स के अंदर भी बहुत मेसो एंड माइक्रो सिलेबस है। सो द की डज नॉट लाई इन दिस, ये तो सबको दिखा है, एक पेज का सिलेबस है। अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस लिख दिया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स। अब आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए कि इससे अलग 40 तरह के टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आया है। इसका मतलब है कि मैं इन ब्रॉडर कीवर्ड्स के हिसाब से नहीं करूंगा चीजें, मैं माइक्रो कीवर्ड्स के हिसाब से चीजें करूंगा। अंडरस्टैंड? मैं माइक्रो कीवर्ड्स के हिसाब से। तो दैट बुकलेट ऑफ माइक्रो टॉपिक्स विल बी द गाइडिंग लाइट फॉर यू टू गो फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस सिलेबस, ठीक है।
दिस इज अबाउट सी सेट, जो हम सी सेट के बारे में बात कर रहे थे। दिस इज अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर, इसका कट ऑफ नहीं लगता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 66 मार्क्स यानी कि 33% मार्क्स लाने हैं। इसमें मेजर पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन, अराउंड करंटली जो PYQ के हिसाब से ट्रेंड है अराउंड 27 to 30 क्वेश्चंस, एंड लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज मैथ एंड डिसीजन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन एंड अदर क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। सो इसके हिसाब से आपको एप्टीट्यूड के लिए भी रेडी रहना है। यूपीएससी इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपने बहुत सारा जीएस पढ़ा, सारे जीएस के सब्जेक्ट पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट रीड किए, उसके अलावा आपको एप्टीट्यूड के लिए भी रेडी रहना है। और जो हम डायनेमिसिटी की बात करते हैं, डायनेमिक नेचर की बात करते हैं, उसके लिए सीसेट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 2023 और 2022 का एग्जामिनेशन, पिछले 3-4 सालों का सीसेट का एग्जामिनेशन हैव बीन मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो कौन उसके लिए प्रिपेयर रह सकता है? जैसे पहले क्या करते थे, जो बीटेक वाले हैं, मैथ बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, दे वर टेकिंग ग्रांटेड दिस एग्जामिनेशन सीसेट, बट यूपीएससी सेड नो, हम थोड़ा लेवल रेज करेंगे, बार रेज करेंगे, आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। फॉर दैट आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। सिर्फ जीएस नहीं पढ़ना है, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सीसेट भी कवर करना है। मैक्सिमम वो लोग जिनका मैथमेटिक्स या साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सीसेट में। सो फॉर दैट जैसे ही आपका प्रीलिम्स का या मेंस का सिलेबस जीएस का थोड़ा कंप्लीट हो, उसके साथ साथ आपको हाफ एन आवर 1 आवर आपको सीसेट के लिए भी देना पड़ेगा। लुकिंग एट द प्रेजेंट पैटर्न, जितना डिफिकल्ट सीसेट बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको सीसेट को भी इग्नोर नहीं करना है और आपको एक इंटीग्रेटेड प्लान का पार्ट बनाना है। अगेन सिलेबस इज इंक्रीजिंग, टू मच सिलेबस इज इंक्रीजिंग, लेकिन इससे अलग क्या करना है? सिलेबस से अलग आपको PYQ, और अब एक एडवांस स्टेज आती है, जैसे और एग्जामिनेशन के अंदर ये नहीं होता है कि आपने टॉपिक पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया और आपने ऐसे कर लिया, लेकिन यूपीएससी के अंदर आपको लिखना है 3 घंटे के अंदर अराउंड 2500-3000 वर्ड के अराउंड आपको 3 घंटे में लिखने हैं। तो दैट इज ए बिग टास्क। सो दैट आपको जो भी स्टडी करनी है, यहां से मैं एक पॉइंट निकाल रहा हूं कि मैं जो भी पढ़ूंगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं उसके नोट्स बनाऊंगा। जब मेरा एग्जामिनेशन, मेरा मेंस एग्जामिनेशन जिसके 750 मार्क्स हैं और उसमें मुझे 6 घंटे बैठ के पर डे लिखना है एग्जाम हॉल में, तो व्हाई आई शुड नॉट मेक नोट? आई शुड मेक नोट फॉर दैट डेफिनेटली। एंड देन नोट्स मेकिंग का भी एक इवोल्यूशन है और वो हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स एन आर्ट, मेकिंग नोट्स इज एन आर्ट, और उसकी मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। अभी हम धीरे धीरे डिस्कशन में जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट सिलेबस इज टू मच। हर सिलेबस के हर टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। इट मींस आपके पास एक नोट मेकिंग का आर्ट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज, इन नन ऑफ द ईयर्स, इन पास्ट रिसेंट 6-7 ईयर्स, कट ऑफ 50% से ज्यादा प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही नहीं गया है। इसका मतलब है कि अगर आपके कुछ टॉपिक्स रह भी जाते हैं, उनके लिए आपको दुखी नहीं होना है। मोस्ट इंपोर्टेंट इज जो कन्वेंशनली और अनकन्वेंशनली आपने जितना ज्यादा कवर कर सकते हैं, आपने उस पर फोकस करना है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। यूपीएससी माइट आस्क एनीथिंग। यूपीएससी इन 2023 आस्क्ड वेरियस थिंग्स जो बच्चों ने नहीं पढ़ी है, एस्पिरेंट ने नहीं पढ़ी है। देन इन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंड? कट ऑफ केम टू 37.5 क्वेश्चंस, यानी कि 75 मार्क्स। ओके, सो अगर ये है कि आप उन चीजों के लिए अब पढ़ेंगे जो 23 में बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से पूछी गई है, अगर आप उनके लिए पढ़ेंगे देन यू विल बी लॉस्ट। सो दैट उस लॉस्ट स्टेज पर पहुंचने से पहले आपको कौन निकालेगा? दैट विल बी योर मेंटर। सो मैंने आई टेल यू विद माय एग्जांपल, मैंने फाउंडेशन कोर्स अलग किया और फाउंडेशन कोर्स से मैंने क्या सीखा? एक कंटेंट और एक जेनरिक अप्रोच। जेनरिक अप्रोच का मतलब है, जैसे मैं अभी 2 घंटे आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक पढ़ लीजिए, आंसर राइटिंग कर लीजिए, प्रीलिम्स का टेस्ट दे लीजिए, बट नहीं, ये जेनरिक अप्रोच उतना काम नहीं आता है जितना मेंटरशिप का अप्रोच काम आएगा आपके। इन माय सेकंड अटेम्प्ट व्हेन आई could not make it to the final list, then I got a mentor in third attempt, और उसने जो अप्रोच मेरी एकदम से चेंज की फॉर मेंस, फॉर इंटरव्यू, फॉर प्रीलिम्स, एवरीथिंग, देन आई कुड पिन पॉइंट टू द सिलेक्शन इन थर्ड एंड फोर्थ बोथ अटेम्प्ट। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स अलोन विल गिव यू द कंटेंट एंड ए जेनरिक अप्रोच, बट ए मेंटर विल गिव यू द स्पेसिफिक अप्रोच। स्पेसिफिक अप्रोच का मतलब है कि आप एक इंडिविजुअल कैंडिडेट है, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स हो सकता है, आपका बैकग्राउंड आईआईटी हो सकता है, या फिर आपका बैकग्राउंड कोई
लोकल सिटी जहां पर रहने वाले हैं वहां के किसी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन और स्कूलिंग करी है। अब मैं आप तीनों को सेम फाउंडेशन कोर्स में सेम क्लासेस दे रहा हूं, दैट वोंट वर्क एग्जैक्टली सेम फॉर एवरीवन, सबके लिए वो बराबर नहीं है क्लास। आईआईटी वाला में टेक दैट थिंग डिफरेंटली, कॉमर्स वाला डिफरेंटली, और जो अपने लोकल कॉलेज से पढ़े हैं वो डिफरेंटली लेंगे। इसका मतलब क्या है, नाउ आई नीड एन इंटरवेंशन, मुझे अब एक ऐसा टूल चाहिए जो उस लेक्चर का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करा पाए। ओके, और वो कैसे होगा, थ्रू द मेंटर। मेंटर क्या करेगा, आपके हिसाब से उस कंटेंट को, आपके हिसाब से उस अप्रोच को मॉडिफाई करेगा कि आप इसको इस हिसाब से कीजिए। हो सकता है कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को मैथ का टॉपिक करने में 15 दिन लग रहे हैं और मैथ वाले बैकग्राउंड, साइंस वाले बैकग्राउंड को 3 दिन लग रहे हैं। तो एक टीचर और एक फाउंडेशन कोर्स में वो नहीं बताया जाएगा प्रॉपर्ली। जब आप फाउंडेशन कोर्स और मेंटरशिप को दोनों को इंटरमिक्स करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूटिलाइज मैक्सिमम द फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीलिम्स एंड मेंस सिलेबस, और ये GS1 GS2 का सिलेबस है। GS1 में मेनली पेपर 1 में ऐसे, GS1 के अंदर आपका हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मेजर सब्जेक्ट है। GS2 के अंदर आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। GS3 के अंदर इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, ये मेजर सब्जेक्ट है। एंड GS4 इंक्लूड योर एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। उसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, एंड दैट चूजिंग दैट सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के बाद। अगर आपने एक बार किक स्टार्ट कर दिया है, कुछ NCERTs पढ़ ली हैं, कुछ फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद जो पहला स्टेप है चूजिंग द राइट ऑप्शनल। राइट ऑप्शनल डज नॉट मीन A सब्जेक्ट वर्सेस B सब्जेक्ट वर्सेस C सब्जेक्ट, इट मीन्स व्हाट विल सूट सिविल may not suit the other candidate। आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ग्रेजुएशन के हिसाब से, अपने लाइकनेस और उस चीज को ग्रास्पिंग और कैप्चरिंग पावर के हिसाब से कि मेरे को ज्योग्राफी ज्यादा जल्दी कैच हो जाती है, मैं कुछ पढ़ता हूं तो एकदम उसका इमेज फॉर्मेट में याद हो जाता है, तो मैं ज्योग्राफी ले सकता हूं। मुझे पॉलिटी का कुछ ऐसा है कि मेरे को पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंटरेस्ट है, मैं इन जनरल भी बिना तैयारी के भी उन चीजों को देखता रहता हूँ, मैं PSIR ले सकता हूँ, सोशियोलॉजी ले सकता हूँ। तो देन आपको एक अच्छी अप्रोच के साथ ऑप्शनल डिसाइड करना है। ठीक है, और आप में से जो लोग ऑप्शनल डिसाइड करने के फेज में हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे से कनेक्ट करिए, डेफिनेटली विल वर्कआउट। इट विल टेक 2-3-4 आवर्स बट वी विल वर्कआउट। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं पहले एस्पिरेंट को मेंटर करता था, मैंने A ऑप्शनल, दे वर कंफ्यूज आफ्टर ए डिस्कशन कि A वर्सेस B में कंफ्यूज हैं, तो देन हमने 15 दिन लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से और एक सिलेबस को कंपाइलेशन के हिसाब से कि आप 15 दिन इस सब्जेक्ट को पढ़िए। ऐसा होता है बहुत बार कि आपको 15 दिन पहले जो सब्जेक्ट लग रहा था कि आपके उसमें बहुत ज्यादा ग्रेस्पिंग पावर है, आपका बहुत इंटरेस्ट है, 15 दिन बाद इट माइट चेंज। ओके, 15 दिन बाद इट माइट चेंज। सो देन वी विल गो फॉर ऑप्शन B, बट हु विल टेल यू फॉर दिस? इधर योर सीनियर, इधर योर कोलेग, इधर योर समवन हु इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, या फिर आपका कोई मेंटर। आपने ऐसा नहीं है कि एक बार सेलेक्ट कर लिया आपको उसके पीछे लगे ही रहना ऑप्शनल की, नहीं। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो 1 महीने बाद उनको लगा कि नहीं इस ऑप्शनल को छोड़ देना चाहिए और मुझे लगता है कि ये मेरे मार्क्स को कम करा सकता है, दे माइट चेंज, बट उनको किसी ने गाइड किया उस चीज के लिए, अदरवाइज हम एक स्पाइरल में फंस जाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम GS1 2 3 4 हमारे लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके बाद बचता है, दैट इज ऑप्शनल पेपर। फर्स्ट इज चूजिंग दैट ऑप्शनल एंड सेकंड इज दैट हाउ टू अप्रोच फॉर दैट ऑप्शनल। उस ऑप्शनल के लिए आगे चीजें कैसे करें, पढ़े कैसे, कोचिंग कहां से ले, टेस्ट सीरीज कहां से ज्वाइन करें, वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है। उसके पहले चूजिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बिकॉज 500 मार्क्स, 500 मार्क्स का आपका सिर्फ ऑप्शनल है। ठीक है, और मार्जिन बहुत ज्यादा है। जैसे GS में यू कैन गेट अराउंड 50% मार्क्स मैक्सिमम, 500 पर टॉपर, आउट ऑफ 1000 500 पर टॉपर आपको मिल जाएगा, जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक में है, टॉप 10 रैंक में है, वो आपको 500 मार्क्स 50% पर मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शनल में 50 मार्क्स आर नॉट दैट मच। आउट ऑफ 500 250 इज ऑलमोस्ट नथिंग। आपके 310, 320, 330 तक आ सकते हैं। इट मींस गिवन द स्कोप, अगर हम ऑप्शनल में ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेंगे देन डेफिनेटली हम ज्यादा मार्क्स अचीव कर पाएंगे इन द होल एग्जामिनेशन।
Okay, so now if any of you is having any doubt, they can definitely put into the chat box. I will answer. Apart from that, if someone is having language issue, definitely also ping me कि in which language you are comfortable. आपको अगर कोई भी डाउट है, if you are having any doubt, कोई डाउट है, कोई इश्यू है, उसको चैट बॉक्स में डालिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई लैंग्वेज से रिलेटेड इशू है, दैट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, देन ऑल्सो यू कैन पुट थिंग्स इनटू द चैट बॉक्स. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दिस. ठीक है. नाउ अब हम ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे थे. दिस इज योर ऑप्शनल पेपर. ठीक है. इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है, बिकॉज मार्जिन बहुत ज्यादा है. For importance, I've already told you that margin is too much. Getting 60% to 65% marks is not that a big task in your optional. 65-60% marks लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है. While in GS it's a big task. GS के अंदर 50% लाना भी बहुत बड़ा achievement है. इसका मतलब है अगर हम एक effort, if we'll be putting some effort into the optional, more effort into the optional, then reward will be more. So now I have been informed that some students are have joined from Shillong. For those all the students who have joined from Shillong, I will be speaking in English. But for all other students, I will be speaking in English, Hindi plus English, both. Okay. And apart from that, also if you have any issue after this also, then definitely put into the chat box. अगर इसके बाद भी किसी को कोई issue होता है language से related, definitely आप उसको chat box में रख दीजिए. So importance of the optional, already told. How to choose optional. ओके. सो डोंट चूज इट इनटू सिलोज. अकेले बैठकर उसको मत चूज कीजिए. अपने किसी सीनियर से मिलिए. मीट योर सीनियर, मीट योर पीयर, मीट योर मेंटोर, गो टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट, वेयर एवर यू कैन गो टू योर फैकल्टी इन द कॉलेज. आप किसी के पास भी जाइए, अपने दोस्त, फैकल्टी, मेंटोर, कहीं भी जाइए, बट अकेले बैठकर उसको चूज नहीं करना है. उसको चूज कैसे करना है, आपको प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेड है. ठीक है. व्हाट इज बेस्ट सूटेड फॉर यू, आपके लिए देखना है कि विच सब्जेक्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर यू एंड व्हेन टू स्टार्ट, बिकॉज टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Timing is important for optional, that if you are targeting 2025 then it's a separate thing. If you are targeting 2026 then timing will be different. अगर आप 2025 के लिए तैयारी करेंगे तो ऑप्शनल एक अलग अप्रोच से पढ़ा जाएगा, और 2026 के लिए तैयारी करेंगे then it will be a separate approach for 2026. ठीक है. Coaching versus self study, definitely mostly I would suggest, generally as a general pattern, I suggest that take the coaching for optional even you have a background, even if you have a background in the same subject. Like if you might be having political science or geography in your graduation, then also you should go for the coaching. I'll tell you the reasons. So then in this particular aspect, coaching versus self study, generally मैं ये बोलता हूँ that one should take कोचिंग. अगर आपका उस ऑप्शनल में ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड भी है, आपने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया है, पॉलिटी से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद भी यू शुड ट्राई टू टेक द कोचिंग इफ यू आर नॉट हैविंग फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट. द रीजन इज ऑप्शनल का सिलेबस आपका ग्रेजुएशन के सिलेबस या पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस से रिजेंबल करता है. द सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल इज समहाउ रिलेटेड टू योर ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन टू सम एक्सटेंट, and that is 3 years course or 4 year course. Now tell me how you can summarize that 4 year course in 3 or 4 months, and how you can write 150 word marks, 150 words for 10 marker and 250 words for 15 marker. हमें कॉलेज में we are taught in college that write more in the college. But what UPSC says, UPSC क्या कहता है, for 10 marker question 150 words, for 15 marker question around 250 words, and 20 marker question around 300 words. So it shows कि there is a different approach for reading the same subject in college as well as for UPSC. सेम सब्जेक्ट को कॉलेज के दौरान पढ़ने के लिए वर्सेस सेम सब्जेक्ट को यूपीएससी के लिए पढ़ने के लिए डिफरेंस है. रीजन बीइंग आपको यहां समराइज फॉर्मेट में लिखना है, बिकॉज यू नीड टू राइट इन ए समरी फॉर्मेट. एंड हाउ यू कैन गेट रेडी विद दैट समरी फॉर्मेट, मोस्ट लाइकली थ्रू द कोचिंग. आप कोचिंग के थ्रू उस सब्जेक्ट के शॉर्ट मटेरियल के लिए रेडी हो सकते हैं. एज ए जेनरिक अप्रोच यू कैन टेक द कोचिंग
versus if you are having some financial constraint and good notes are available in the market, then go for self study. अगर अच्छे notes market में available है, आपके किसी friend, आपके किसी senior के पास available है, then you can opt for self study depending on constraint of financial resources. Then PYQ, again nothing separate for PYQ, but importance is higher because of repetition. जैसे हमने अभी बात किया PYQ के लिए, as we talked right now about PYQ, that PYQ will you give a approach how to go for syllabus study, how to read that particular topic for the UPSC examination. But here PYQ is not just developing your approach. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि PYQ का इंपॉर्टेंस है आपकी अप्रोच डेवलप करने के लिए, लेकिन यहां पर इन द ऑप्शनल PYQ का रिपीटेशन रेशियो इज वेरी वेरी हाई. द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड रिपीटेटिवली 10 times, 12 times, 20 times also some question have been asked. जो रिपीटेशन रेशियो है ज्योग्राफी या किसी भी ऑप्शनल के दौरान वो बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 10, 12 और 20 टाइम्स भी रिपीटेशन हो सकता है. इसका मतलब है कि PYQ का रोल ज्यादा हो जाता है ऑप्शनल के दौरान. Got it? Now this approach will be developed either through the syllabus coverage of through coaching or through a mentor. या तो ये आपको कोई मेंटर गाइड कर पाएगा इसके लिए बहुत अच्छे से, या कोई कोचिंग. ठीक है. सो अभी हमने डिस्कस किया, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज ऑप्शनल एंड ऐसे वी विल डिस्कस सेपरेटली. अब हमने डिस्कस किया है सिलेबस प्रीलिम्स का, मेंस का और ऑप्शनल के लिए. ठीक है. उसके अलावा दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट एट दिस स्टेज, इन विच स्टेज यू आर राइट नाउ, इज हाउ टू चूज ऑप्शनल. ये सारे फैक्टर, दीज ऑल फैक्टर विल बी कवर्ड लेटर, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इज हाउ टू चूज ऑप्शनल. एंड मोस्ट ऑफ यू who want to give 2025 और 2026 will be stuck in this. आप में से बहुत सारे लोग 2025, 2026 जो देना चाहते हैं how to choose optional में अभी stuck होंगे. Some of you might be thinking that graduation subject is the best because you have read it 3 years. It might be true but not always. कुछ को लगेगा कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने 3 साल पढ़ा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. It means you need to give some time and in choosing the optional. So I will be available through the platform. If someone of you is having problem in choosing an optional, they can connect with me. आप में से जिन लोगों को optional choose करने में कुछ issue आ रहा है, they can connect with me through the Tarun platform. Okay. Now, these factors, how to plan your studies, will be mostly given by a mentor. फाउंडेशन कोर्स के दौरान, इन द फाउंडेशन कोर्स यू विल बी टॉट द होल सिलेबस इन होल कवरेज, द होलिस्टिकली इट विल बी टॉट टू यू. बट सम ऑफ यू माइट बी वर्किंग प्रोफेशनल. आप में से कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं जिनके पास 4 to 5 hours पर डे है. ठीक है. सम ऑफ यू माइट बी ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, अभी कॉलेज के अंदर ही हैं, हु हैव 6, 7, 8 hours. ओके. लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कॉलेज भी ओवर हो गया है एंड दे आर नॉट डूइंग एनी जॉब. इन दैट सिनेरियो यू कैन प्लान योर स्टडीज by giving hours with respect to yours, depending that how much hours right now you are having. You are college going student, you are a job student, or you are a free student that who can give 10-12 hours per day. Okay, then that approach will be developed by a mentor. सेम 2025 को टारगेट करने के लिए, टू टारगेट द 2025, 2026, whatever attempt you are targeting, the mentor will be telling you, depending on how much hours you are having per day for study, आपके प्रतिदिन कितने घंटे आप दे सकते हैं, कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, उसके हिसाब से आपका रियलिस्टिक टाइम टेबल सेट किया जाएगा. रियलिस्टिक एज वेल एज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स हम एक साल के लिए एक टारगेट बनाएंगे. टारगेट है 2025 का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना. वी विल बी मेकिंग ए टारगेट ऑन द मैक्रो स्केल दैट वी वांट टू क्वालिफाई फॉर 2025 और 2026 प्रीलिम्स. देन इन दैट monthly plans will be made, meso planning. Then okay, first I will be going for polity. उसके अंदर कुछ मेसो प्लान बनाए जाएंगे कि मैं पहले पॉलिटी करूंगा, देन ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, देन सोसाइटी, लाइक दिस. Then the micro planning, and the micro planning will be including weekly planning as well as per day planning. Micro planning के अंदर weekly planning और daily planning आएगा, and then you will be provided some flexibility. Flexibility, what I mean here, if I have given you a task as a mentor that 10 hours per day for 7 days, it means 70 hours. But maintaining that 10 hour is not a
easy task, it's a very difficult task. इन 10 घंटे को per day maintain करना, it will be difficult. It means I am telling you to go for 70 hours per week, but a flexible target will be given that 65 to 68 hours will also be managed. Then similarly month में भी आपको एक relaxation मिलेगा और yearly भी एक relaxation मिलेगा. उसके अलावा both subject में you will be feeling that I have given you 40 days for polity, but you have completed that in 30 days. So that is called flexible timetable, both on micro as well as macro scale. Okay, integrated approach for prelims and mains. Okay, now I will divide syllabus for you. Integrated and prelims approach, what does that mean? Integrated prelims and mains approach का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है कि अगर मैं if I look for my syllabus of GS, polity, economy, geography, history, mainly modern history, environment, science and technology. Out of 20, 25 invariable subjects like security, international relation, governance, social justice, society, around 20 subjects में से these are 5-6 subjects जिनका weightage is more than 50% or around 60% in both prelims and mains. Approach for reading that topic is different. उस टॉपिक को पढ़ने के लिए दोनों सब्जेक्ट के अंदर अप्रोच अलग है. पार्लियामेंट आई एम रीडिंग. फॉर द मेंस आई विल रीड दैट व्हाई पार्लियामेंट इज नॉट एबल टू फंक्शन. मेंस के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में इश्यूज क्या है, क्यों ये फंक्शन नहीं कर पा रहा है. बट फॉर प्रीलिम्स आई विल हैव टू रीड व्हाट इज पार्लियामेंट, what is speaker, what is deputy speaker, what is chairman, what are both houses, what are their powers. लेकिन प्रीलिम्स के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा संसद क्या है, उसके लोकसभा स्पीकर क्या है, उपाध्यक्ष क्या है, चेयरमैन क्या है, ये सब मुझे पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ ये भी चाहिएगा आपका ओपिनियन, क्यों ये फंक्शन नहीं कर पा रहा है पार्लियामेंट, क्यों डेमोक्रेसी के लिए ये एक थ्रेट हो सकता है. तो देन बट टॉपिक इज सेम, पार्लियामेंट, maybe president, maybe governor, topic is same, but the approach is different. It means if you will go for integrated prelims and mains approach, you will be reducing your time to get selection to a greater extent. आपका जो टाइम है सिलेक्शन के लिए वो ग्रेटर एक्सटेंट तक कम हो जाएगा. एंड सेकंड थिंग इज दैट यूपीएससी इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन इन सिलोज, दे आर आस्किंग इंटीग्रेटेड क्वेश्चन. ओके, यूपीएससी अलोन और सिलोज अकेले आंसर्स नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, इंटीग्रेशन में पूछ रहा है. व्हाट इज दैट दिस इंटीग्रेशन? वी हैव डिस्कस जीएस 1 2 3 4 एंड डिफरेंट सिलेबस फॉर जीएस 1 2 3 4. हमने भी डिस्कस किया 4 जीएस के पेपर और उनका अलग अलग सिलेबस. बट इफ यू विल फाउंड दैट इंटीग्रेशन इज देयर. साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन इफ इट इज रिलेटेड टू द अर्थ और सोलर सिस्टम, इट इज आस्क्ड इन ज्योग्राफी. सो आपको दो सब्जेक्ट का नॉलेज लगाना पड़ेगा. यू विल हैव टू अप्लाई नॉलेज ऑफ टू सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज ज्योग्राफी. Similarly, if something is related to economy, but that is also related to society, poverty, unemployment, these kind of things, these are not just economy, these are society as well. कुछ टॉपिक्स, मैक्सिमम टॉपिक इनफैक्ट ऐसे हैं जो 2 पेपर का या 3 पेपर का पार्ट बनेंगे. यूपीएससी उन्हीं तरीके से क्वेश्चन सेट कर रहा है कि आप एक एग्जाम, एक पेपर के हिसाब से आंसर नहीं लिखेंगे, आप मल्टीपल पेपर्स के हिसाब से एग्जाम लिखेंगे एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ. यू विल बी राइटिंग द आंसर फॉर with multiple approach, with multiple topics, so that you can show the diversity, ताकि आप diversity दिखा पाए. And that diversity will come through the integration of the subjects, both prelims as well as mains. That will come through the integration. Okay, I'll be back in 1 minute. तीन चार को लगे हैं इसके. Okay, so this is very important aspect to complete your syllabus in a holistic manner, integrating your prelims and mains. Okay, let me just briefly tell you the way how you can
डू दिस थिंग, मैं आपको ब्रीफली बताता हूं आप इसको कर कैसे सकते हैं. जस्ट एन एग्जांपल, नॉट इन द डिटेल्ड मैनर. डिटेल्ड के लिए मेंटरशिप सेशंस में आई विल बी टेलिंग यू फॉर डिटेल्ड मैनर दैट हाउ दिस इंटीग्रेशन विल हैपन. सपोज कीजिए आप पॉलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट. सपोजिटली यू आर रीडिंग द चैप्टर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम योर पॉलिटी बुक इन लक्ष्मीकांत. ओके, and you are thinking in your mind that you are doing this subject for prelims, this chapter for prelims, and you are reading the facts and all the judgments related to that and all the articles related to that in the fundamental rights chapter. आप उसका facts, judgments और आपका उसका articles prelims के perspective से याद कर रहे हैं, ठीक है. और आप उसको लक्ष्मीकांत में क्योंकि मोस्टली prelims के perspective से दिया गया है, so it means you are reading in silos. आपको सिर्फ वो टॉपिक सिलोज में याद हो रहा है. बट मेंस के लिए आप कैसे जाएंगे? मेंस के लिए आप ऐसे जाएंगे जैसे आपने शेड्यूल किया है ऑन संडे आई विल बी सोल्विंग 100 PYQs फ्रॉम पॉलिटी फंडामेंटल राइट चैप्टर फ्रॉम प्रीलिम्स एंड देन आई विल डेवलप एन अप्रोच हाउ टू रीड दैट. मैं प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन इस संडे को नेक्स्ट संडे को सोल्व करने जा रहा हूं कि प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन मुझे फंडामेंटल राइट के सोल्व करने हैं. The integrated approach will come if on the next day you will be doing at least 20, 30, 40 questions which have been asked in PYQ in mains as well. अगर 20, 30, 40 क्वेश्चन आप जो PYQs पर्टिकुलर टॉपिक से मेंस में भी पूछे जा चुके हैं, then you will be reading that topic in a holistic manner. Same fundamental right topic, prelims as well as mains. ठीक है. So then in the mentorship sessions or the foundation course session these things will be discussed in more detail. सेशन के दौरान ये चीजें बहुत डिटेल में कवर की जाएंगी और ईच एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम टेबल और बनाया जाएगा और उसके हिसाब से उसकी इंटीग्रेटेड अप्रोच रखी जाएगी. जैसे कि इंडिविजुअल, व्हाट डज इंडिविजुअल मीन हियर, इसका मतलब ये है दैट एवरीवन विल नॉट बी हैविंग दिस प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड एंड मेंस अप्रोच. People who are writing for 2025 will be given more focus for integration, but who are giving 2026 उनके लिए separate schedule बनेगा. तो people who want to give 2026 then they will not be having that integration into that much focus. First their first focus will be how to approach that subject. 2026-27 वालों के लिए पहले approach matter करेंगी, then we will come for integration. Okay. Role of note making I've told you already, because optional GS all these paper in the mains include 750 marks which is around 80% of your weightage of final list. आपका जो मेंस है वो अराउंड 80% वेटेज रखता है. इसका मतलब है जिसमें आपको 6 घंटे पर डे लिखना है तो आप तभी उसको मास्टर कर सकते हैं. यू कैन मास्टर ओनली एंड ओनली इफ यू हैव मेड गुड नोट्स. ओके, सो इट्स एन रोल ऑफ नोट मेकिंग एंड इट्स जस्ट नॉट रोल, इट्स एन आर्ट ऑफ नोट मेकिंग. इट्स एन आर्ट टू मेक गुड नोट्स. ठीक है. व्हाट इज दिस आर्ट? ये आर्ट क्या है? दिस विल बी डिस्कस्ड इन ए होलिस्टिक मैनर इन द मेंटरशिप एज वेल एज फाउंडेशन कोर्स सेशन. आपको ये बताया जाएगा पर्टिकुलरली दैट आपको किस सब्जेक्ट के किस तरीके से नोट्स बनाने हैं. लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ चैप्टर्स हैं जिनके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. सो इट मीन्स आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट सेइंग कि don't make this note, but yes, I will be giving you an approach or the faculty will be giving you an approach. This topic is important and generally you can remember this topic through making notes. And कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनको आपको मैं बताऊंगा कि नोट्स के माध्यम से आप उनको याद कर सकते हैं. ठीक है. Prioritize preparation on weightage, role of PYQ. I have discussed already that it will decide your approach. PYQ आपका approach decide करेगा और आपका weightage decide करेगा. What does that it mean? इसका मतलब है if world history is not being asked in last 6 years, only one question is asked and the syllabus is same as of society, and society is being asked for 100 marks or 75 marks each year. अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 सालों में सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है मैक्सिमम और सोसाइटी के लिए 100 मार्क्स का आ रहा है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ रहा है और सिलेबस सेम है, टाइम मुझे सेम इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहाँ ज्यादा रिसोर्सेज डालूंगा? सोसाइटी और सोशल जस्टिस के ऊपर. दैट्स व्हाट कॉल्ड प्रायोरिटाइजेशन. बिलीव मी, इन व्हाटएवर अटेम्प्ट यू आर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, you will be always having dearth of time. You will be always in thinking that you are having paucity of time, irrespective of attempt. आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आपको हमेशा लगेगा कि समय कम है. जब अटेम्प्ट दूर होगा, 10 महीने दूर होगा, तब लगेगा यू हैव इनफ टाइम. लेकिन जैसे अटेम्प्ट पास आएगा, जैसे एग्जाम पास आएगा, यू विल सी दैट यू हैव
paucity of time. Then how you can save yourself from that, आप उससे बच कैसे सकते हैं उस paucity of time से, prioritizing your preparation. And again a mentor and faculty will be helping you going for that based on analysis of PYQ. एक faculty और एक mentor आपको उसमें help करेगा based on PYQ. ओके, फाउंडेशनल नॉलेज, मेजर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, मैंने बताया ये कोर सब्जेक्ट है, इनका 50 से 60% सिलेबस है और इसको आप इंटीग्रेशन में कर सकते हैं. सो दिस इज मेजर सब्जेक्ट एंड इट इंक्लूड 50 to 60% ऑफ सिलेबस ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इट मींस these major subject need to be focused more and this is building block. ये मेजर सब्जेक्ट आपका फाउंडेशन है अगर आपके ये स्ट्रॉन्ग है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गुड इन पॉलिटी देन यू विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट गवर्नेंस. अगर आपको पॉलिटी अच्छे से समझ आ रहा है तो गवर्नेंस बहुत इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है, आपको अगर इंटरनेशनल रिलेशन के एस्पेक्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट समझ आ जाएंगे आसानी से कि कैसे चाइना से फंडिंग या फिर म्यांमार से ड्रग्स और ये सब हो रहा है. तो देन इंटरकनेक्टिविटी आपका डेफिनेटली इंप्रूव होगा और इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा, उसका जो बेसिस होगा विल बी दीज मेजर सब्जेक्ट. यू कैन कॉल इट कोर सब्जेक्ट. ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ रिविजन. रिविजन थ्रू नोट्स ऑल्सो इज एन अप्रोच एंड इट मेक पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स. रिवीजन कई तरीके से किया जाता है, उसमें से एक अप्रोच मेकिंग नोट्स के थ्रू भी हो सकता है. एक्टिव रिवीजन होता है एंड पैसिव रिवीजन होता है. अगेन वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन द मेंटरशिप सेशन. 3R फॉर्मूला, रीड, रिवाइज एंड रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस मींस आप उसको टेस्ट के थ्रू देखिए, अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए और जो भी आपने सोचा है उसमें देखिए कि आपने जो पढ़ा है यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस और नोट. वट एवर यू हैव रेड, वट एवर यू हैव रिवाइज, are you able to gain marks in both prelims as well as mains. Okay, important of PYQ already discussed. Again one thing which bothers too much to the student, आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान करता है. I have mentored many students but most of them are focused, सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, फ्रॉम वेयर वी शुड कंप्लीट द करंट अफेयर. सर सारे न्यूज़पेपर कर लें, Indian Express, we should do Indian Express, Hindu and any other newspaper. Should we do all other magazines? क्या सर हम सारी मैगजीन कर लें? ओके, क्या सर हम PIB भी पढ़ लें, राज्यसभा टीवी के डिबेट भी देख लें? सर should we go for PIB, RSTV and in all of them? Should we go for that? No. It will depend in which month the examination is and in which month you are asking these things to me. It will depend what portion of syllabus you have covered or what portion of syllabus you have revised. Okay, आपने कितना पढ़ लिया है आपने syllabus का portion और आपका एग्जामिनेशन कितने दिनों बाद है, ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको करंट अफेयर किन किन सोर्सेज से पढ़ने हैं. बट यस, अगर आपका अभी से 1 साल बाद पेपर है, 2 साल बाद पेपर है, इफ यू आर हैविंग एग्जामिनेशन आफ्टर 1 year or 2 years, डेफिनेटली गो फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग. इग्नोर राइट नाउ ऑल दीज, सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग पर इनिशियल स्टेज में फोकस कीजिए. देन वी विल बी डिस्कसिंग इन द मेंटरशिप एज वेल एज फाउंडेशन कोर्स सेशन कि दैट हाउ यू कैन चेंज द अप्रोच फ्रॉम न्यूज़पेपर टू द मैगजीन्स एंड देन मेक बेस्ट यूज ऑफ द करंट अफेयर. ओके, आई जनरली टेल दैट सम सब्जेक्ट्स आर करंट अफेयर बेस्ड सब्जेक्ट. कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें यूपीएससी अगर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो करंट अफेयर बेस्ड है. I am not saying that is a current affair question. Current affair question might be data based, fact based. Current affair का question data और fact पूछ सकता है. But what I am talking about is a current based syllabus like economy, whatever happening in the economy, that is part of your static syllabus. जो भी इकोनॉमी में इस साल में हो रहा है वो आपके static syllabus का पार्ट है. तो ना तो एग्जामिनर static पूछ रहा है ना डायरेक्टली करंट. The examiner is interlinking both static as well as current for some subjects like polity, economy, environment and science and technology. Specifically environment, science and technology and economy, there is an integration. Environment, science, technology और economy के लिए एक integration है current affair के टॉपिक का static टॉपिक के साथ. कैसे पता चलेगा? PYQ से. Got it? तब हम बताएंगे कि इन सब्जेक्ट के लिए अप्रोच न्यूज़पेपर रीडिंग और मैगजीन रीडिंग का अलग होगा. देन फॉर दीज सब्जेक्ट्स वेयर करंट बेस्ड टॉपिक आर बीइंग आस्क्ड, देन अप्रोच फॉर द रीडिंग न्यूज़पेपर एंड रीडिंग करंट अफेयर विल बी डिफरेंट देन अदर सब्जेक्ट वेयर फैक्चुअल डिटेल आर बीइंग आस्क्ड. ठीक है, सो दीज आर टू एस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर. दीज आर टू एस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर. वन इज करंट अफेयर के 2 एस्पेक्ट है.
one is direct factual current affairs, and the second is current based topics, current based topics, करंट पर आधारित टॉपिक्स, एंड दिस इज मेनली इन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग ऑन द PYQ एनालिसिस। ओके, सो करंट अफेयर के लिए भी हम आपको यहाँ जेनरिक अप्रोच नहीं दे रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपका एग्जामिनेशन कितने मंथ बाद है एंड आपका सिलेबस कितना कवर हो चुका है, कितना रिवाइज हो चुका है, और आप किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं अप्रोच अलग होगा, आप दूसरा सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे हैं डायरेक्ट जहां से फैक्चुअल आ सकता है, अप्रोच विल बी डिफरेंट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज नॉट जेनरिक अप्रोच हियर फॉर करंट अफेयर आल्सो। Then if you are reading a direct factual topic, it will be a different approach and different source, but if you are reading for topics which are current based both in prelims as well as mains, then the approach will be different. Okay, and these all approach will be discussed throughout your course. Then now after the art of note making, note making के art के बाद the advanced stage is writing the answer, and that is very 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 important. Now you have read something, you need to reproduce it. आपने कुछ पढ़ लिया है, उसको आपको reproduce करना है in the answer writing format, because ultimately आपको in the mains you need to write answers only. Okay, for 10 marker 15 marker ultimately आपको answers ही लिखने हैं, and that means you need to have subject knowledge. The notes are crisp, very 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 crisp and synopsized, so that you can directly use the keywords. That's why I am saying that note making is an art. नोट्स इतने अच्छे होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए कि एक आर्ट जो आपने नोट मेकिंग का डेवलप किया है उनके कीवर्ड्स आप डायरेक्टली आंसर में डाल पाए। थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट एग्जामिनर इज नॉट हैविंग एम्पल टाइम फॉर यू। एग्जामिनर के पास सिर्फ आपके लिए समय नहीं है, ही नीड टू चेक टू मच कॉपीज, सो देन वी नीड टू शो हिम कीवर्ड डायरेक्टली थ्रू द नोट आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। हमको उसको कीवर्ड दिखाने पड़ेंगे डायरेक्टली थ्रू द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग कि मैंने कीवर्ड डाल दिया, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, वट एवर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड आई एम मेट द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन, जो भी आपने पूछा उसकी डिमांड मैंने मीट कर दी है और कीवर्ड्स आपको दे दिए हैं। इट मींस द क्रिस्प वन लाइन इफ आई वुड से व्हाट इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज यू नीड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन एग्जामिनर। आपको एग्जामिनर के ऊपर कॉपी चेक करने का बर्डन कम से कम कर देना है। हाउ यू कैन डू इट? थ्रू राइटिंग ए गुड इंट्रोडक्शन, थ्रू राइटिंग सब हेडिंग्स, थ्रू राइटिंग कीवर्ड्स, मेकिंग डायग्राम्स। अच्छा इंट्रोडक्शन लिखकर, सब हेडिंग्स लिखकर, डायग्राम बनाकर और उसको डेटा फैक्ट एंड कीवर्ड्स देकर उसको जब आप हाईलाइट करके देंगे ब्लैक पेन से, अंडरलाइन करेंगे या कुछ भी करेंगे, देन हीज फोकस विल गो टू दैट एरिना। इफ यू विल बी अंडरलाइनिंग द वर्ड्स, इफ यू विल बी राइटिंग इन विद डिफरेंट पेन, देन ही विल सी द थिंग्स इजीली। इट मींस हिज जॉब इज इजी, ही इज गोइंग टू गिव यू मोर मार्क्स इफ यू हैव गिवन good subject knowledge to him. Okay, so in this foundation plus mentorship course I have requested the team that provide 2 questions daily. जो भी क्लास में चल रहा होगा, whatever topics will be discussed in the class, 2 question for the practice will be provided daily and some of the best answer will also be evaluated. उनमें से कुछ अच्छे आंसर्स evaluate भी किए जाएंगे depending on resources. अगर रिसोर्स ज्यादा है हमारे पास, if you are having more resources, we will be evaluating every answers depending on how much students are writing. Now this is not just giving you 2 question, this is about ensuring, pushing you to that level कि लिखिए, write the answer, pushing you to that level that we will force you to write answers. Okay, and the structure will be in layer format. Okay, layer format means first the basic question which unlikely to ask in the mains. Okay, then little bit advanced question but static likely to be asked in the mains. Then the most advanced stage in the revision stage of yours, these will be asked the highest probability question for mains. आपको स्टेजेज और लेयर्स में कराया जाएगा ये कि आपको पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन दिए जाएंगे जो शायद एग्जाम में ना पूछे जाए, देन सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच विल बी एडवांस वर्जन, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में पूछे जाए, एंड द मोस्ट एडवांस वर्जन जिनकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पेपर में आने की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर को भी आपको बताया जाएगा। वी विल बी टेलिंग अबाउट स्ट्रक्चर, हाउ वी विल बी टेलिंग अबाउट स्ट्रक्चर, नॉट in a blank space, not in a blank space.
First, I will be evaluating your answer or the team will be evaluating your answer. Then with a continuous feedback of 20-30 days, we will be judging that how you can improve your structure. Okay. So it's not a open process where you can just, I will be just telling you that do this, do this, do this, do this. No, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा या कोई भी टीचर नहीं बताएगा कि आप ऐसे 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 कर लीजिए, नहीं, आपको एक बार बताने के बाद आपको लिखना है. Whenever you tell you, then you have to write and then we will be correcting your structure again and again with every answer. Believe me, after 20, 30, 40 answers, one approach is set. 20, 30, 40, 50 आंसर लिखने के बाद एक अप्रोच डेवलप हो जाता है और देन उस अप्रोच को वी विल बी एंश्योरिंग दैट यू आर डूइंग इन ए टाइम फ्रेम. जो भी एग्जाम में टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर आप कर रहे हैं. तो स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट. सिलेबस एंड पीवाईक्यू ऑलरेडी डिस्कस्ड. गेट फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट. दिस एस्पेक्ट विल बी टेलिंग अबाउट नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रक्चर, ऑल्सो अबाउट द कंटेंट. ये जो आपका फीडबैक सेशन है, फीडबैक इंप्रूवमेंट है, ये आपका बताएगा सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में कि आप कैसे गेन कीजिए सब्जेक्ट नॉलेज को. जैसे मैं GS1 का कोई एग्जाम दूं, इफ आई एम गिविंग सम एग्जामिनेशन ऑफ GS1, एग्जामिनर और माय मेंटर विल आइडेंटिफाई दैट माय GS1 में आई एम हैविंग एंशिएंट और वर्ल्ड हिस्ट्री आर वीक पोर्शंस फॉर मी. I am either writing substandard answers or I am leaving that subject. मेरा मेंटर और मेरा टीचर बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा कि मेरा एंशिएंट हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉलेज कम है और मेरा स्ट्रक्चर भी वीक है. देन ही विल कॉल और कॉन्टैक्ट मी कि आप क्यों नहीं इसके अच्छे आंसर लिख पा रहे हैं. Why are you not able to write good answers for ancient history as well as world history? Then I tell sir I have not read it. मैंने नहीं पढ़ा है सर ये दोनों सब्जेक्ट. Then one approach will be developed where you can write at least above average answer. Okay, so out of 20 question you need to write just 14-15 question which are good or very good category, 3 to 4 question in above average category and 1 to 2 questions substandard category. आपको इन 3 फॉर्मेट में ऐसे आंसर लिखने होंगे क्योंकि आपको इट विल नॉट बी वेरी इजी दैट आप 20 के 20 क्वेश्चन अपनी नॉलेज से करेक्ट कर पाए. समवेयर you will be uncomfortable in one subject or one topic, then that topic might come into examination. This is also an art to understand how to write above average or substandard answer. ये भी एक आर्ट है above average answer लिखने का. And then how it will be done? Again through the feedback and improvement. When my mentor or teacher will be saying I am not good in this subject or in this topic, he will be telling a good approach कि आप how you can do this particular thing. Okay, the mentor or examiner will be doing this through feedback or improvement. How I will help you here? I am telling you how I will be and the team will be helping you. Regular sessions will be conducted for answer writing. After whenever you are into a stage that you have read something and you have revised it, then you will be in a stage to write the answer. Don't wait for answer writing. You can wait for writing the test but don't wait for answer writing. जैसे ही आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होता है आपको आंसर राइटिंग के लिए वेट नहीं करा जाएगा. आपको राइट अवे आंसर राइटिंग करनी होगी और उसमें आपको फीडबैक और इंप्रूवमेंट के लिए आपको बताया जाएगा और उससे आपकी स्ट्रक्चर एज वेल एज कंटेंट डेवलप किया जाएगा सो दैट यू कैन राइट दीज काइंड ऑफ आंसर. सो इफ वट एवर आई हैव डिस्कस्ड, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है उनमें से एक चीज को मार्क करना हो, इफ आई हैव टू मार्क वन थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल 10 टॉपिक्स विच आई विल बी डिस्कसिंग टुडे इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. If one is good with answer writing, if कोई answer writing में बहुत अच्छा है, then most likely in one attempt or two attempt he will be qualifying the exam. बहुत likely है कि वो एक और 2 attempt में exam को qualify कर जाएगा. And my role will be lying not just here in mains answer writing, it will lie as a mentor, it will lie throughout the course structure. Be it prelims, be it completion of the syllabus, be it completing the particular topic, be it answer writing. ये किसी भी फॉर्मेट में होगा मेरा सपोर्ट. आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में, PYQ सोल्व करने के फॉर्मेट में, किसी कंटेंट को रीड करने के फॉर्मेट में, किसी टॉपिक को रीड करने के फॉर्मेट में. ओके, these are some of the additional tips. Okay, now I am a selected candidate. I should tell you definitely this. Most of you will be facing such issues. एज ए सिलेक्टेड कैंडिडेट मैं आपको बता रहा हूँ ये इशू आएंगे आपके प्रिपरेशन के दौरान. व्हेन यू विल बी सीइंग द फेलियर, जब आपको फेलियर दिखेगा या फिर आपको दिखेगा आर यू मेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, यू विल बी थिंकिंग दैट शुड आई गो फॉर इट, शुड आई गो फॉर ऑप्शन बी, शुड आई गो फॉर ऑप्शन सी, वट एवर माई फैमिली इज सेइंग. ये मैक्सिमम टाइम तब होगा जब आप किसी दूसरी चीजों के बारे में होंगे कि क्या मैं इस एग्जाम के लिए बना हूँ, क्या नहीं बना हूँ. सेल्फ डाउट आएगा, इट मीन्स सेल्फ डाउट आएगा. उस सेल्फ डाउट को दूर करने के लिए ही सबसे बड़ा रोल आता है मेंटर का.
जैसे ही आप अपने टारगेट्स अचीव करना बंद करेंगे, देन मेंटर विल बी टेलिंग यू, ओके व्हाई आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर टारगेट्स, आई नीड योर टारगेट कंप्लीशन. देन यू कैन डिस्कस, सर आई एम हैविंग सम मेंटल हेल्थ इश्यू, I am feeling self doubts. Then your mentor will be taking you out from that stress. ठीक है? So again, maintain your mental as well as physical health. If you are doing some yoga, meditation or any extracurricular activity which is going to help you in your interview. अगर आप कोई भी extracurricular activity, योगा, meditation करते हैं तो आप उसको definitely pursue करते रहिए, sports खेलते रहिए, पढ़ाई से अलग, उसमें पढ़ाई compromise नहीं होगी. For sure, the studies will not be compromised in that, but physical health as well as mental well-being is very important to make you a tough person to take the challenge of qualifying the UPSC. Okay. The second is, if you are finding that you are not able to study yourself and you are unable to maintain discipline. अगर आपको लगता है कि आप discipline maintain करने में पढ़ाई का आप सक्षम नहीं, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप 10 घंटे के बजाय आप सिर्फ 5 घंटे पढ़ पाए, आप 4 घंटे पढ़ पाए, 2 दिन पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़े. If you are not able to maintain that self discipline, one thing is approach your mentor right away. Sir, I am not able to do it. Tell me how to do it. Okay, we have various methods. Like if you are having groups, well and good. If you are not having groups, as a mentor, I have done sessions in which Zoom sessions are conducted and all the students who are having such problems are made to sit in a Zoom platform, in an online platform with a camera open, sit here for 4 hours, sit here for 3 hours and read these particular topics. Then you can ensure that you all are in a close vicinity. And one mentor or one team member will also be watching over you that okay, you are doing your job. That's how the external push will also be enforced on you as a study groups or online forums. ठीक है? Third is keep it super simple. It means don't complicate the things. Syllabus is too much, definitely. Things to do are too much. PYQ भी करना है, we need to do PYQ, we need to do test series, we need to do optional, we need to do essay, we need to do this, that. It means the syllabus and everything is already complicated and your task is to simplify this. More the simplifying approach you are taking, chances of getting clear the examination increases because the cutoff is 50%. जितना आप सिंपल अप्रोच रखेंगे उतने ही चांस आपके बढ़ेंगे क्योंकि कटऑफ इज अराउंड 50-55%. तो आपको 100% नहीं लाना है, 90% नहीं लाना है. इसका मतलब है कि अगर आप उन कॉम्प्लिकेशन को सिंपल कर देंगे देन चांसेस आपका बढ़ जाएगा. एंड द फोर्थ थिंग इज एंगेज इन द स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज, मेडिटेशन, योगा जो हमने डिस्कस कर लिया है. ग्रुप डिस्कशन कैन बी वन फॉर्मेट ऑफ दैट. एंड थर्ड इज अगेन आप अपने मेंटर का सर खाइए. जब भी कोई दिक्कत हो रहा है उसको फोन तुरंत करिए, मैसेज करिए तुरंत, नहीं रिप्लाई करा है कि बार बार कॉल कीजिए उसको. दैट्स हाउ यू कैन रिड्यूस योर बर्डन. जब आप किसी को अपना मेंटर मान रहे हैं, किसी को अपनी फैकल्टी मान रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी जो भी निगेटिविटी होगी, जो भी आपका स्ट्रेस होगा, उसका बर्डन शेयर करने दीजिए उनको. देन ही विल मेक यू आउट ऑफ दैट स्ट्रेस. एंड डेफिनेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है? बिकॉज एग्जामिनेशन, इन दिस एग्जामिनेशन एवरीथिंग इज ऑन स्टेक. आपका इस एग्जामिनेशन में सब कुछ स्टेक पर लग जाता है, तो देन स्ट्रेस मैनेजमेंट बिकम्स मोर important. Some of you, some or many of you might be having some issues financially और फैमिली इज नॉट दैट सपोर्टिव. आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहा है या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है. उन केसेस में, इन दोज केसेस, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैंडल दैट स्ट्रेस एंड ए मेंटर विल ब्रिंग यू आउट फॉर दैट स्ट्रेस डेफिनेटली. Stay updated and adaptable. It means what I'm saying is the first sentence I used is this is a dynamic examination. ये एक डायनेमिक एग्जामिनेशन है. आप एक अप्रोच को लेकर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू इट दैट आई विल बी डूइंग दिस विद दिस अप्रोच. नो, वी हैव टू बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस. अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन इट इज कॉल्ड. इसको अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी बोलते हैं बिकॉज देयर आर अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड अनसर्टेनिटीज आर बेस्ट फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट. यस, आई कैन से बिकॉज आई एम सिलेक्टेड, बट व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट देन अनसर्टेनिटीज यूज्ड टू बोदर. लेकिन आप अनसर्टेनिटी से घबराइए नहीं, कट ऑफ गिर जाएगा. The cutoff will be reducing. So it means you need to be updated as well as adaptable. For example, you might have read something with a particular approach and that is not being asked in the examination with that approach, but it is asked with a different approach. आपने एग्जामिनेशन में एक अप्रोच से पढ़ा है एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में किसी और अप्रोच से आ गया. In that scenario, a good updated and adaptable candidate will be able to go to a
लॉजिकल कंक्लूजन टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। कोई भी लॉजिकल बंदा, लॉजिकल एस्पिरेंट, अब अगर वो अडेप्टेबल है तो एक कंक्लूजन तक पहुंच पाएगा, बेस्ट सूटेड कंक्लूजन तक, जहां से वो आंसर को करेक्ट कर सके। सी गाइडेंस फ्रॉम मेंटर एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट। डेफिनेटली इन दिस प्लेटफॉर्म यू विल बी प्रोवाइडेड प्लेथोरा ऑफ guidance and mentorship through the selected candidates, not just by me, by the team of selected candidates also. Stay informed about the examination trends and that you can do from PYQs. Conclusion, we have discussed, okay, let me summarize everything for you. मुझे आपके लिए थोड़ा summarize करने दीजिए। मैंने आपको first thing I told you about what this examination constitute, prelims, mains as well as interview, personality test. हाउ मच मार्क्स इट इज गिवन फॉर पर्टिकुलर सेक्शन। मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें डिफाइन किए गए हैं। सेकंड थिंग आई टोल्ड यू, दिस एग्जाम इज वेरी 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 डायनेमिक। उसको डायनेमिसिटी को, अनएक्सपेक्टेडनेस को कम करने के लिए हाउ टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज, वन इज कंप्लीटिंग द सिलेबस। सिलेबस नॉट जस्ट द ब्रॉडर सिलेबस बट द की पॉइंट और the micro syllabus, in which you will be provided with a micro syllabus where tick box will be there that have you completed this topic. आपको tick box वाला micro syllabus provide किया जाएगा, उसमें आपको tick box में लगाना है कि ओके मैंने मुगल्स के अंदर ये कर लिया है, यूरोपियन के अंदर ये कर लिया है और मॉडर्न हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ गांधी ये कर लिया है, that I have completed these topics. ठीक है। थर्ड, किसी टॉपिक को करने के लिए हाउ टू डू दैट टॉपिक, व्हाट शुड बी माय अप्रोच, मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, विल बी डिपेंड ऑन योर PYQ एनालिसिस। ठीक है, तो आपको एक PYQ एनालिसिस के लिए कुछ बुकलेट्स हैं, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। थ्रू दैट यू नीड टू डेवलप ए अप्रोच दैट हाउ टू रीड पॉलिटी फॉर UPSC, and the same things will be done your teacher, your mentor into the course itself. When all things will be merging, then you will be having a best approach. जब आपका mentor, foundation course का teacher और आपका खुद का analysis जब merge होएगा, then you will be having the best approach. Fourth is the defining the syllabus for prelims as well as mains, and the fifth one is art of note making. It will be discussed in detail in the further session. Note making cards आपसे discuss किया जाएगा डिटेल में। उसके अलावा आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल डिस्कशन। आपसे आंसर राइटिंग को, दिस इज नॉट ए वन वे अफेयर, इसको आपको रेगुलर एंड इंप्रूवमेंट बेसिस पर करना पड़ेगा। यू नीड टू डू इट रेगुलरली, डेली, एंड आफ्टर 20, 30, 40 आंसर्स, बिलीव मी यू विल बी गोइंग टू ए बेटर अप्रोच, बेटर स्ट्रक्चर, बेटर कंटेंट। ओके, 20, 30, 40 आंसर लिखने के बाद आपका स्ट्रक्चर, कंटेंट सब कुछ बेहतर हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एग्जाम रेडी। That it means mains answer writing through the art of note makings. If you merge both of them, again the result will be in favor of you. Okay. उसके बाद choosing the optional in your mains is again very important. I understand in which condition you are right now, that you will be writing for 25, 26. आप 2025 और 26 के लिए एग्जाम लिखेंगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि मैं क्या ऑप्शनल लूँ, बिकॉज गेटिंग 60%, 65% मार्क्स इन ऑप्शनल is more easy than getting 50% marks in GS. It means मेरा ज़्यादा focus should be on optional. My more focus should be on optional because 60 to 65% of the weightage or 60 to 65% of the marks of the optional marks will be easily achievable as compared to GS. Okay. Then PYQ and everything. So I have done everything for you, and then I have told you that what is the role of mentor and a teacher in this particular study. If you are going to qualify in third attempt or fourth attempt, they can make it to first or second attempt. So it's not a bad thing to take help of someone to qualify for such a big examination. ये कुछ बुरा नहीं है अगर आप किसी की help लेकर इस examination को qualify करने हैं. Ultimate thing is that you are getting qualified, and believe me, life changes a lot after the selection. ठीक है, it's a very good thing to get selected. Okay, the motivational note, that as a selected candidate, telling the motivational thing are easier, but as an aspirant, feeling those things is very difficult, because many time you will be facing stress, you will be facing self doubt. आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत बार सेल्फ डाउट आएगा. उस सेल्फ डाउट को हटाने के लिए आपको कोई ना कोई लगेगा. टू रिमूव दैट सेल्फ डाउट यू नीड समवन, मे बी फ्रॉम योर फैमिली, मे बी फ्रॉम योर पीयर्स, फ्रेंड्स, टीचर और ए मेंटर. ओके, इफ यू आर नॉट हैविंग एनीवन, देन मेंटर इज ऑलवेज देयर, कॉल हिम डायरेक्टली. अगर कोई नहीं है आपका उस स्ट्रेस से निकालने के लिए, उस सेल्फ डाउट से निकालने के लिए, मेंटर आपका ऑलवेज अवेलेबल रहेगा. इस ब्रीफ टाइम पीरियड में वट एवर आई कुड हैव डिस्कस्ड, आई हैव डिस्कस्ड इन ए ब्रीफ मैनर. इसी तरीके से विद द सेम मैनर आई वट एवर आई हैव डिस्कस, जो भी मैंने डिस्कस किया है, फॉर होल वीक यू विल बी डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन.
my purpose was, the team's purpose was that before going into the subject, before going into the content, the best approach can be to tell you how you need to develop a periphery around you, that मैं इस periphery के अंदर work करूंगा, ठीक है. Then in the coming week you will be discussed more things about the approach of this examination, art of note making, art of answer writing, art of completing the current affair. Everything will be discussed in this whole week as a generic approach. Then after that mentorship sessions are there. इस week में आपको different dimensions examination से related बताए जाएंगे और उसके बाद आप mentorship के through उनको personalize definitely करा सकते हैं. Now I leave floor to you. Please ask question in the chat box, someone in the app और थ्रू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म. आपके लिए अब मैं फ्लोर को ओपन रखता हूं. आप डाउट्स अपने जो भी हैं पूछिए. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल द डाउट्स. ओके, पुट इन टू द चैट बॉक्स इधर इन द ऐप और इन द यूट्यूब. चैट बॉक्स में आप अपना पूछ सकते हैं.